Friends, on 31st March 1997, Comrade Chandu was assassinated in Siwan at the behest of Shahabuddin, who was the RJD MP at the time from Siwan. Chandrasekhar had been the JNUSU president twice, यानी वो 2 बार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद वो सिवान लौटे थे जो कि उनका घर था. He had returned home to Siwan और उन्होंने तय किया था कि वो CPIML के भाकपा माले के होल टाइम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे. So he returned to Siwan, his hometown, as a CPIML whole time activist, and he was campaigning for a Bihar Bandh on the day that he was shot dead at a street corner in Siwan. उसके बाद जो आंदोलन हुआ, the movement that followed his assassination, उसमें आम JNU के छात्र बड़ी संख्या में और उसके बाद में देश भर में छात्र जो है, साधारण छात्र बड़ी संख्या में उस आंदोलन में शामिल हुए, उस आंदोलन में बहुत बड़ी शिरकत किए और एक तरह से वो आंदोलन जो था, that movement was in a way the tribute of the student movement of that generation to Chandrasekhar. आज जब हम लोग चंद्रशेखर को याद करते हैं तो क्या याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? हम लोग जो उनके दोस्त थे, हम लोग जरूर इस बात को याद करते हैं कि वो बेहद निष्कवच किस्म के थे. ऐसे मित्र थे जो लोगों से, अपने मित्रों से बेहद प्यार करते थे, उनका बेहद ख्याल रखते थे. लेकिन सिर्फ उनके मित्रों का ही नहीं, एक तरह से हर इंसान जो उनके दायरे में था या जो दुनिया में कहीं भी था, उनके लिए उनकी उतनी ही तवज्जो होती थी, उसके लिए उतना ही वो केयर करते थे. So he would care as much for any person who was in his orbit, whether it was his friends or whether it was workers of JNU or whether it was workers anywhere in the country, whether it was JNU students, you name it. So it was not, he was someone who was a very, very good person, a person capable of very, very deep love, deep affection for people, and who gave a lot of himself. बहुत सारा मैंने खुद का जो था, खुद को बचाने के चलते, खुद को कैसे एक तरह से लोगों को समर्पित करें, ये उनके बिल्कुल साधारण उनके कैरेक्टर का हिस्सा था. So today when we remember him, I think about one thing a lot of the time, which is that you keep hearing this a lot of the time. Even now, when we are all in this lockdown and we are looking at the terrible effect of an unplanned lockdown on a sudden declaration of a lockdown on India's workers and the most vulnerable people in India's society, and you're seeing hunger deaths and you're seeing this exodus of the migrants and all of that. But when you point out what can be done better or what could have been done better, then a lot of people say, "Aap to bahut negative hai. You're too negative. Why can't you see things positively for once?" And they think that you're supposed to be loyal to your government, and loyalty to government is loyalty to your country at a time of crisis. लेकिन दरअसल ये बात उतना सही नहीं है. और चंद्रशेखर इसके सबसे अच्छे उदाहरण थे. चंद्रशेखर हम लोगों को अपने ज़माने में यही बात सिखाए थे. He had taught us this thing. Chandu had, by his very example, he had taught us that one of the most positive things you can do is to believe that society can change, is to believe in society's capability to better itself, to be more just, to be more loving, to be more inclusive to everybody, to be capable of giving everyone equality, not only of access, but equality in every respect, and a very genuine equality. तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है कि आप मानते हैं कि अभी जो समाज हम देख रहे हैं उसमें सुधार संभव है, उसमें बदलाव संभव है, उसमें क्रांति संभव है, और उसके लिए काम करना, ये एक तरह से इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है. और इसलिए इस प्रेरणा से जब आप काम करते हैं, चंदू जैसे लोग
जो काम करते हैं वो सरकारों से सवाल जब करते हैं तो एक तरह से दैट इज एन एक्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिसिपेशन, दैट इज एन एक्ट ऑफ पॉजिटिव membership of your country's community, your social community, and you're a member of the community of the world. You are working to make the world a better place. तो आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जब लड़ते हैं, जब संघर्ष करते हैं, तो वो एक तरह से सबसे ज्यादा पॉजिटिव एक तरह से एक काम होता है। दूसरी चीज मुझे इस समय लगती है कि जेएनयू के छात्र या अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ जिस तरह का सुलूक हमने होते हुए देखा है हाल के दिनों में, जिसमें कि उनको अर्बन नक्सल कहना, उनको एंटी नेशनल कहना, टुकड़े टुकड़े कहना, पता नहीं क्या क्या कहना. So all these epithets that are given to JNU students and students of other universities right now, that they are anti-national, they are tukde gang, etc., etc., you name it. And I think about the fact that, what does it say about the right-wing discourse that they try to appropriate Comrade Chandrasekhar once he has been killed. But when he was alive, this was exactly what they used to call him as well. So कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या के बाद तो एबीवीपी ने भी कोशिश की, संघ परिवार ने भी कोशिश की कि वो उस चंदू को अपनाए, और उन्होंने कोशिश की ये कहने की, उनकी हत्या के बाद जो आंदोलन हुआ उसमें गोविंदाचार्य आए थे, उसमें एबीवीपी के लोगों ने कोशिश की थी ये कहने की कि भाई ये सब तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए हैं और चंद्रशेखर की बात हम करेंगे। लेकिन हमने करने नहीं दिया था। हम जो आंदोलन में लोग थे हमने बिल्कुल नहीं करने दिया था। हमने कहा था कि चंदू की पॉलिटिक्स को, चंदू के विचारों को, चंदू जिस तरह की सोसाइटी के लिए लड़ते थे उस चीज को हम याद रखेंगे। और उस समय हम लोग ये बात पूछते थे कि जब वो थे, जब वो जिंदा थे, तब तो वो सारे जो काम करते थे उनको आप लोग एंटी नेशनल और यही सारी चीजें तो कहते थे उनको। तो यही सारी इसी गाली की भाषा में ही तो आप बोलते थे उनके बारे में। तो उनके और उनके साथियों के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनकी पार्टी के अन्य साथियों के बारे में आप यही सब तो कहते थे। तो इस समय आप क्योंकि एक बड़ा छात्र समाज एक तरह से चंदू से जुड़ता है, तो उनके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अप्रोप्रिएट करें। सो वी यूज्ड टू टेल देम दिस, व्हेन ही वाज अलाइव यू कॉल्ड हिम एंटी नेशनल, you called his party comrades anti-national, you referred to his party in extremely vile, abusive terms. You still refer to his comrades in those terms. So kindly don't try to appropriate him once he's gone. And इस समय खास करके हम लोग शायद चंदू जैसे साथियों को मिस करते हैं, क्योंकि मैं अभी सोचती हूँ कि चंद्रशेखर जैसे जो युवा हैं, जिनके पास में पॉलिटिक्स का वो मॉडल हम लोगों को भी सिखा गए, उसकी हमें खास करके इस समय जरूरत है। और मैं खास करके उन सारे युवाओं से, छात्रों से इस बात को कहूंगी कि देखिए, आजकल के जमाने में अक्सर होता है कि हम जो पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके लिए एक इमीडिएट ऑडियंस है। एक तरह से आप उसे सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मीडिया पे दिखे, और उन सारी चीजों में आप एक तरह का परफॉर्मेटिवनेस करते हैं। In a way, your politics there's a certain kind of performativeness in this. इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपील करूंगी बल्कि, कि चंद्रशेखर की याद करते हुए हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ये परफॉर्मेटिवनेस की जगह ना हो, और अगर हम सचमुच में काम कर रहे हों तो उस काम के वास्ते कर रहे हों, उस वर्ग के वास्ते कर रहे हों जिसकी जीत होना जरूरी है। ये हमारे लिए कहीं पर किसी कोई चुनाव लड़ने की तैयारी है या कहीं पर चुनाव जीतने की तैयारी है, हम कैसे जीतें, हमको कैसे टिकट मिले, हम कैसे काम करें, ये सारी चीजें न सोच करके, बल्कि ये सोचना कि जिस वर्ग के लिए हमारा आंदोलन लड़ता है, हमारी पार्टी लड़ती है, उस आंदोलन की जीत कैसे हो, वहां की जनता की जीत कैसे हो, और ये इसमें हम खुद होंगे प्रत्याशी की नहीं, हम खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, हमें खुद जो है वो मीडिया या सोशल मीडिया में बहुत वाहवाही मिलेगी कि नहीं, वहां कितने लोग हमें देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उस चीज को एक तरह से अलग रख करके, पुटिंग असाइड द आइडिया ऑफ approval from media or social media, and putting aside putting in front the idea that the class for which our party represents, which the movement represents, that class needs to win.
So its victory is the victory that we are fighting for, not our own getting a ticket or our own winning some electoral victory or whatever it is. I think that was one of the very important things that Chandu never had to say these things. The way he lived his life was the example that sort of by a certain kind of osmosis, that is what he communicated in terms of his politics to those of us who were his comrades at that time. And right now, when we are faced with this enormous challenge of, we are up against an extremely authoritarian fascist regime, which is appealing to the worst instincts in everybody in our society. ऐसे निज़ाम को हम लोग देख रहे हैं जो हमारे समाज की सबसे खराब जो प्रवृत्तियां हैं उसको बुला रही है, उसको उभारने की कोशिश में है। एक दूसरे से नफरत की, एक दूसरे पर हिंसा की, एक तरह से गैर बराबरी की, हर तरह की गैर बराबरी की, गैर बराबरी को ही देश की संस्कृति कह देना और दमन को चुपचाप सहना, दमन के लिए वाहवाही करना, इसी को एक तरह से ये कहना कि यही देश प्रेम है। समाज जो बदलने के लिए चल निकले हैं, जो भगत सिंह के राह पर चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की राह पर चलते हैं, उनके बारे में कहना कि ये सारी तो देशद्रोही हैं, तो चीजों को बदलने की कोशिश रखना भी, उस कोशिश को भी कुचल देने की कोशिश हो रही है आजकल। We are looking at how the government in power is trying to crush even the very dreams that a Bhagat Singh, somebody who wants to walk in the footsteps of a Bhagat Singh or an Ambedkar would today want to do. They are being intimidated, they are being vilified, and there is an attempt to crush the very impulse inside them. At such a time, when we look back at Chandrasekhar and when we think about what he represented and we are inspired by him, I would say that here on 31st March 2020, remembering him is about reminding ourselves that this impulse for change, this impulse that we have to be part of the change, and the impulse to, that we are not the center, that I am not the center of the universe. There's no need for me or I to be the center of the universe. You're working for a larger society as a part of larger society, and you always keep that in mind कि उस सोसाइटी को बदलना है, वो सोसाइटी बेहतर हो सके, उस सोसाइटी के जो सबसे अच्छी प्रवृत्तियां हैं, एक दूसरे से दोस्ती की, एक दूसरे से प्यार की, एक दूसरे से साझेदारी की और गैर बराबरी से लड़ने की इच्छा की, एक दूसरे के गैर बराबरियों को अगर हम एक तरह की गैर बराबरी बर्दाश्त कर रहे हैं तो दूसरे के साथ जो गैर बराबरी हो रही है उसे पहचानने की क्षमता, उसके साथ एक तरह से एक एम्पैथी रखने की क्षमता, इसके लिए इसको हम लोग आज शायद याद करें और इसको हमारे भीतर पैदा करने की कोशिश करना, ये शायद कॉमरेड चंद्रशेखर को सबसे बेहतर तरीका होगा याद करने का। मैं एक आखिरी बात कहूं कि इस समय जो हमारे AICCTU के साथी हैं उसमें ढेर सारे ऐसे छात्र हैं जो छात्र जीवन के बाद में ट्रेड यूनियन के काम में लगे हैं और उस काम को कर रहे हैं। हमारे जो विधायक भी हैं, कॉमरेड विनोद सिंह जैसे विधायक झारखंड के, तमाम जो हमारे बिहार के 3 विधायक हैं, कॉमरेड सत्यदेव जी, कॉमरेड सुदामा जी, कॉमरेड महबूब आलम, ये सारे लोग भी एक तरह से इसी तरह की प्रेरणा से निकले हुए लोग हैं, इसी तरह का काम कर रहे हैं। और आज के समय में देखिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। जिस समय माइग्रेंट वर्कर्स जगह जगह पर, प्रवासी मजदूर फंसे हैं, जगह जगह पर लोग खाने के लिए नहीं है और त्राही मच रही है, गांवों में भी त्राही मच रही है, शहरों में भी। And when the sudden lockdown has left people in the lurch, in a way, left the most vulnerable in our society in the lurch, and they are being, while some people have the privilege of being safe and secure inside their homes, there are so many people who are being pushed into danger of every kind, not just from COVID-19, but the danger of death at the hands of police, the danger of an accident because you're desperately trying to take your family, walk so many kilometers of road on the highways back home, death at the hands of police brutality, you name it.
So, death from hunger because your parents have not been able to earn during the lockdown. These are all the things जो हम लोग देख रहे हैं. और आप सोचिए कि अगर कोरोना वायरस कोविड-19 से भारत में अभी तक लगभग 29 लोगों की मौतें हुई हैं, तो 22 लोगों की मौतें लॉकडाउन की वजह से हुई हैं. इसी तरह की घटनाओं के चलते, जहां पर कहीं एक्सीडेंट से, कहीं पुलिस के साथ मारपीट से, कहीं भूख से, इस तरह की चीजों से जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं थे, जिनसे अगर ठीक प्लानिंग होती तो ये बच सकते थे. तो इनको एक तरह से कोलैटरल डैमेज की तरह देखने के बजाय कि भाई लॉकडाउन तो क्या करें, नेसेसरी इविल है, जरूरी है, और इसमें कुछ जाने गई तो कुछ जाने गई. ये कोलैटरल डैमेज कहते हैं इसको इंग्लिश में. सो वी शुडंट लुक एट दीज लाइव्स एज जस्ट कोलैटरल डैमेज. अरे व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, कि क्या ही कर सकते हैं, ये नेसेसरी इविल है, ऐसा होना ही था, कुछ लोगों की जाने तो जाएंगी ही एक ज्यादा अच्छे काम के लिए. ऐसा सोचने से नहीं चलेगा. मैं सोचती हूँ कि कॉमरेड चंद्रशेखर कैसे सोचते हैं इन चीजों के बारे में, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो एक तरह से उनको हर इंसान की जान, एक भी जान इस तरह से ना जाए. तो कोविड-19 की जो आपदा है वो बेहद दुखद है. इट्स एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी, द कोविड-19 पैंडेमिक. बट the state's response to this, government's response to this in India and in other parts of the world, that is not just some kind of, that is quite separate from the actual occurrence. That is unjust. वो एक तरह से गैर बराबरी को जगह देने वाली रिस्पॉन्स है, गैर बराबरी को बढ़ावा दे रही है. वो ऐसे लोगों के लिए जो जिनके जीवन में पहले से सुरक्षा है उसके बारे में सोच रही है, लेकिन जिनका जीवन पहले से बहुत असुरक्षित और अनिश्चित था, उनके जीवन के बारे में जरा भी बिना सोचे, जरा भी बिना तैयारी किए एक तरह से उनको ऐसे मैंने दो मौतों के बीच में चुनने की स्थिति में झोंक दिया है. तो ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, और इसलिए इसे सिर्फ दुखद कहना या एक दुखद जरूरत कहना ये काफी नहीं है. इसके लिए संघर्ष करना, और इस समय AICCTU CPIML के जो साथी जो कर रहे हैं, जो कि देश भर में जहां जहां पर लोग फंसे हैं उनको उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश में है, उस मदद की कोशिश में आप भी लगिए. आप भी हमारे साथियों से संपर्क करिए, पूछिए कि आप अपने जगह जहां भी आप लॉकडाउन है वहां से आप क्या चीजें कर सकते हैं हम लोगों की मदद के लिए. आप कैसे इस मदद के अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर आपके पास में क्षमता हो तो आप जरूर इस राहत अभियान को अपना सहयोग भी दीजिए. आप जो हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह में शेयर किया है, उन बैंक अकाउंट्स में भी आप जरूर अपनी कंट्रीब्यूशन भेजिए, क्योंकि हम लोग इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. रात दिन जहां पर प्रवासी मजदूर फंसे हैं, जहां पर लोग भूख से जूझ रहे हैं, उन तक हम राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश में है. कहीं कहीं पर सरकारों का साथ, सरकारों की मदद जरूर मिल रही है, लेकिन बहुत कम जगह. और एक तरह से सरकार का गायब रहना इस पूरी चीज में, यही एक ज्यादा बड़ी सच्चाई हम लोगों के सामने है. और खास करके जिस सरकार ने ये निर्णय लिया है लॉकडाउन थोपने का, लॉकडाउन करने का, उनके तरफ से एक तरह से गायब रहना, लॉकडाउन के 5 दिन बाद प्रवासी मजदूरों को याद भी आना, ये हालात हमारे सामने हैं. तो इन हालातों में हम कॉमरेड चंद्रशेखर से प्रेरणा लेते हुए अपना संघर्ष करें, इस अभियान का हिस्सा बने. कोविड-19 से ही न लड़ें, बल्कि जो अन्याय हो रहा है, कोविड-19 से लड़ना तो बेहद जरूरी है, लेकिन कोविड-19 से लड़ने के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, जो गैर बराबरी हो रही है, जो दमन हो रहा है, उससे भी लड़ना उतना ही जरूरी है. तभी जाकर के कोविड-19 से हम सबको बचा पाएंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को बचा करके बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे. इस अभियान में आप लोग भी अपना सहयोग जरूर दीजिए. कॉमरेड चंद्रशेखर को याद करते हुए आप सभी लोगों को लाल सलाम. So I just said at the end that we are in remembering Comrade Chandrasekhar. The thing to do now would be to make yourself a part of the campaign to for relief to those who are hit by the COVID-19 lockdown to the extent possible.
Our AICCTU and CPIML comrades are busy in this. We have publicized the bank accounts where we are asking for contributions. If you're in a position to contribute, please do so that you can help us to help those who are in need. That would be the best way to remember Comrade Chandrasekhar today, 31st March 2020.